Welcome to Acme Classes Simply Economics, a one-point stop wherein all your doubts and queries relating to class 11th and 12th economics shall be resolved in the most simplistic way. So this is video number 4 in this series of 7 videos dealing with money, banking, Keynesian economics, trade cycles, fiscal and monetary policy, so on and so forth. In part 3 of the video series, we're dealing with monetary policy, quantitative credit controls. In part 4, we'll deal with qualitative credit controls. Before we go there, let's refresh what monetary policy was. If you've not seen the videos prior to this one, I seriously suggest that you do so, otherwise you will not be able to understand the context in which the video is being formulated. So monetary policy is the policy followed by the central bank of a country to control the situation of excess or deficient demand by affecting the demand side of things. So if inflation is as a result of higher aggregate demand due to increased money supply in the hands of the people, so the objective of monetary policy is to reduce the money supply. Reduction in money supply will cause the demand to fall, and falling demand will check the rise in prices. Likewise, in case of deflationary gap existing in the economy, or in other words, the deficient demand, where prices are falling because of low aggregate demand, and low aggregate demand is being caused because of lower degree of money supply or in the hands of the people or lower disposable incomes. So the objective of the policy in order to be able to correct the situation is to increase the money supply in the hands of the people. With that summary, let's proceed on to the next slide. If you want greater details of what we're talking about, please do watch videos number 1, 2 and 3 in this 7-part series. So today we're dealing with qualitative credit control. The first tool used in qualitative credit control is margin requirements for loans, which basically is used in context of secured loans. For example, if you borrowing money from a bank by giving a security of 1 crore and margin requirement is 10%, it basically means you will be given a loan of 90 lakhs after a reduction of 10% from 1 crore. The reason banks have margin requirements is that in case if they give the full value of loans commensurate with the amount of security, and tomorrow the security does not help the bank to recover the losses, then the bank will be at a loss. For instance, अगर 1 करोड़ का घर आपने सिक्योरिटी पे दिया और बैंक ने आपको 1 करोड़ ही लोन में दे दिया है और आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बट टू सेल द हाउस इन द ओपन मार्केट एंड रिकवर देयर लोन. बट अगर वो हाउस की वैल्यू ही गिर जाए और लेट्स से 85 करोड़ पे आ जाए, लेट्स से 85 लाख पे आ जाए, तो आपका बैंक को 15 लाख का लॉस हो जाएगा. तो बैंक्स हम कभी भी फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी की जितना लोन नहीं देते हैं, उससे कम देते हैं. अदरवाइज बैंक्स को लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. जब अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई कम करनी है, तो उस सिनेरियो में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी. तो जहां पर पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% थी, वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% कर दी जाएगी. एज अ रिजल्ट, पहले जहां 1 करोड़ की सिक्योरिटी के अगेंस्ट 90 लाख रुपए का लोन मिल रहा था, अब उसी 1 करोड़ की सिक्योरिटी अगेंस्ट 80 लाख का लोन मिलेगा. और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम कर दी जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले 30% थी 1 करोड़ के लोन के अगेंस्ट, विच बेसिकली मेंट कि अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहे हैं, 70 लाख का आपको लोन मिल रहा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% से अगर 10% कर दी जाएगी, तो आपको 1 करोड़ के सिक्योरिटी के अगेंस्ट 90 लाख रुपए का लोन मिल पाएगा. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से आपके हाथ में ज्यादा लोन मिलता है, जिससे आपके हाथ में मनी सप्लाई बढ़ती है. मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है. सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दी जाती हैं और डिफ्लेशन में डिक्रीज कर दी जाती हैं. सेकेंड इज क्रेडिट राशनिंग. ये क्रेडिट राशनिंग मोस्टली इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सजेस्ट टू द कमर्शियल बैंक्स कि भाई ज्यादा लोन मत दीजिए और अगर लोन देना है एक लिमिटेड अमाउंट तक दीजिए. सो क्रेडिट राशनिंग इज अ टूल मोस्टली यूज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. सो इफ इन्फ्लेशन चल रही है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है और आप मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं, तो सजेशन कैन बी मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स टू गिव लेसर लोन्स than required, than asked for. As a result, credit rationing reduces the money supply. और जब डिफ्लेशन होता है तो क्रेडिट राशनिंग हटा दी जाती है, उसको नहीं रखा जाता. उसमें जितना आप लोन देंगे कमर्शियल बैंक्स, उतना ही मनी सप्लाई लोगों के हाथ में इंक्रीज होगी
जितना लोगों के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इतनी डिमांड इंक्रीज होगी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज विल बी चेक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉरल सुएशन। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि कमर्शियल बैंक्स किस बिजनेस में है। कमर्शियल बैंक्स का बिजनेस तभी चलेगा जब वो लोगों को लोन्स देंगे। तो इन्फ्लेशन में वो लोगों को लोन देना चाहेंगे बिकॉज अदरवाइज वो कमाएंगे कैसे। अब हम इन्फ्लेशन में कह रहे हैं कि लोन कम दीजिए बिकॉज लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम करनी है। अब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम करना तो ठीक है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, बट उससे कमर्शियल बैंक्स का बिजनेस खराब होता है। वो लोन्स देना चाहते हैं, अदरवाइज वो कमाएंगे कैसे, बिकॉज वो लोन्स जब तक देंगे नहीं तब तक इंटरेस्ट तो अर्न करेंगे नहीं। एज अ रिजल्ट जब सजेशन मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और कमर्शियल बैंक उस सजेशन को ना माने, वो अलग सिचुएशन है। जब माननी पड़ती है कमर्शियल बैंक मॉरल सुएशन के बेसिस पे माननी पड़ती है, मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पे माननी पड़ती है, क्योंकि कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री के बेनिफिट के लिए बात करता है मोस्टली, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर नॉट पर्सनल गेन। तो उसमें सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक्स को कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दैट यू रिड्यूस द मनी सप्लाई बाय गिविंग लेस लोन्स टू बी एबल टू चेक इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज और टू गिव मोर लोन्स इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। तो उस सिचुएशन में एक सजेशन मिलता है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कमर्शियल बैंक्स नॉर्मली मान ही लेते हैं बिकॉज उनको पता है कि अगर वो ना माने तो अल्टीमेटली लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसके पास है, तो वो फिर डंडा भी चलता है, वो अलग सिचुएशन है। बट मॉरल सुएशन ही ट्राई की जाती है, स्टिक पॉलिसी कम, बिकॉज अगर लोग कलेक्टिवली इसको एग्री कर जाएं तो वो बेटर रहता है, बेटर फॉर ऑल। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो नंबर 4, डीलिंग विद monetary policy qualitative credit controls. Video number 5, 6 and 7 are the forthcoming videos, where videos 5 deals with government budget and its components, because government budget and its components समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि fiscal policy कैसे काम करती है to check inflation or deflationary gaps, to check excess or deficient demands, and last but not the least will be a credit creation system by the banking system. So with this we come to an end, and in the end I would like to say that if you like what we shared, please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you, have a nice day and good luck.